Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss the topic mutation in genetic code. So in the chapter principle of inheritance, we have discussed the topic mutation. So what is mutation? Mutation, that is the change in the base pair of the DNA or change in the base pair of the chromosome. So that may be of two types, chromosome mutation or gene mutation. So if there is the change in the genes, then we can say the gene mutation, or if there will be the change in the chromosome number or the chromosome size or the shape, then it is the chromosomal mutation. But now we will discuss the mutation in case of genetic code. Means if there is the mutation in the genetic code, then also there will be the change in the genes. Then if genes are different, then the different proteins are there, and if different proteins, then different body design. So this topic we have discussed in chapter 5th, but here we have to just discuss with the help of the genetic code, because genetic code, that is the triplet code, means if the base pair in the they are in the triplet form, अगर तीन बेस पेयर इकट्ठे हैं ट्रिपलेट की फॉर्म में हैं, तो हम उसको बोलेंगे जेनेटिक कोड. तो अगर कैसे यहाँ पे म्यूटेशन होगा, अगर हम मीन्स कुछ इंसर्ट कर देते हैं या हम कुछ उसमें से रिमूव कर लेते हैं, तो एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे कि किस तरह से अगर एक पूरा फ्रेम ही शिफ्ट हो जाएगा या अगर एक जीन रिमूव होगा या ऐड होगा तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, दैट वी विल डिस्कस. सो लेट अस डिस्कस. फर्स्टली, व्हाट इज़ म्यूटेशन? द लॉस और द गेन ऑफ द जीन. मीन्स जीन म्यूटेशन हम जिसको बोलेंगे लॉस और गेन ऑफ द जीन, एंड ड्यू टू दैट there will be the change in the function of that gene. That gene may be removed, that gene may be added. So it is of two type, insertional or we can say the addition. insertion कर सकते हैं या हम उसकी जो है addition कर सकते हैं या हम उसको remove कर सकते हैं. One example that is of sickle cell anemia, chapter 5th में हमने पढ़ा कि जो नॉर्मल RBCs that are biconcave shape and that are round, but in case of sickle cell anemia the shape of the RBC is changed. So how the shape of the RBC is changed? That is due to the polypeptide chain of hemoglobin. So this polypeptide chain, that is made up of proteins, and if there is the change in the amino acid, then different protein will be there. And why these amino acids are changed? Because due to the change in the single base in the 6th position of the beta globulin chain. So in case of hemoglobin there are the two chain, alpha chain and the beta chain. So in the beta chain at the 6th position पे क्या होना चाहिए? ग्लूटामिक एसिड. दिस ग्लूटामिक एसिड इज द अमीनो एसिड एंड इट इज कोडेड बाय अ ट्रिपलेट कोडॉन GAG. बट इफ एट द प्लेस ऑफ A U is added, G and G are the same, but at the place of A U is added, then this GUG code for valine. In our last video I told you that there are the different codons that code for the different amino acids. तो अब ये कोडोन GAG ये पहले किसके लिए कोड कर रहा था? ग्लूटामिक एसिड के लिए. लेकिन बाद में जब A की जगह पे क्या आ गया? U आ गया, तो इसने किसके लिए कोड किया? वेलिन के लिए. तो अब पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन में 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ गया? वेलिन. सो इफ पॉलीपेप्टाइड चेन इज चेंज, then protein is also change, and if protein is change, then the size of the hemoglobin, जो hemoglobin है, that is also change, and the shape of the that RBC, that is of biconcave shape, it change into sickle cell. ये एक सिक्कल की तरह जिसको हम दराते बोलते हैं, उसकी तरह
ये हो गई, एंड ड्यू टू दिस शेप द ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी थी वो भी कम हो जाएगी, एंड देयर विल बी द मीन्स लो ऑक्सीजन इन द ब्लड, and that is known as the anemia, and that is also known as the sickle cell anemia. So that is due to the change in this only one base pair. Okay, so that is the point mutation. Next is the frame shift mutation. What is frame shift mutation? frame shift का मतलब ये है कि पूरा फ्रेम ही चेंज हो जाएगा। पूरा फ्रेम कैसे? सपोज आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल हेयर, दिस mRNA मोलिक्यूल। अगर ये पूरा एक mRNA है और इसके अंदर कितने जीन्स हैं? 1 2 3 4 5 जीन्स आर हेयर। तो इन जीन्स में दो कंडीशन हो सकती है, या तो ऐड हो सकता है कोई भी जीन, मीन्स हेयर द इंसर्शन और द एडिशन विल बी देयर, और द रिमूवल, या हम उसको रिमूव कर सकते हैं, और वी कैन से डिलीशन। ओके, तो हाउ मैनी मीन्स जीन्स आर हेयर? 1 2 3 4 5, and if addition is there, one extra gene is added after this fifth gene, and if this gene is added, then that gene determine a particular character, क्योंकि अगर एक नया जीन ऐड हुआ है तो वो अपना कोई ना कोई कैरेक्टर लेके आएगा। सो इफ़ दैट कैरेक्टर इज एडेड, वो जो आप बोल सकते हो कि कुछ चेंज आएगा, कुछ वेरिएशन आएगी, म्यूटेशन हो जाएगी, वेरिएशन आएगी, तो वेरिएशन दैट मे बी फेवरेबल और दैट मे बी अनफेवरेबल। वेरिएशन जो है दैट लीड्स टू इवोल्यूशन, और वो वेरिएशन फेवरेबल भी हो सकती है और नॉन फेवरेबल भी हो सकती है। सपोज़ हम बात करें पॉन्ड वाटर की, कि इन पॉन्ड वाटर देयर आर द मैनी बैक्टीरिया लिविंग, बट इफ़ ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इंक्रीज, most of the bacteria die, only some will survive. So why they survive? Due to the variation, and this variation is favorable for them, क्योंकि उस वेरिएशन से वो क्या हो रहा है, वो उस कंडीशन में रह पा रही हैं। सो इस म्यूटेशन से क्या हो सकता है? फेवरेबल वेरिएशन भी आ सकती है और नॉन फेवरेबल वेरिएशन भी आ सकती है। सो एडिशन हो गई। ओके, सेकेंड केस अगर हमने यहाँ पे लिया, ये एक पूरा mRNA का सेगमेंट है और उस पर 1 2 3 4, अगर ये फिफ्थ जीन जो है वो रिमूव हो जाए तो ये जीन क्या करेगा? किसी न किसी कैरेक्टर के लिए कोड करेगा, और अगर किसी कैरेक्टर के लिए कोड करेगा तो वो जीन अगर रिमूव हो गया तो वो कैरेक्टर भी नहीं रहेगा, और उससे पूरा जो फ्रेम है वो ही क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। तो इस टाइप की म्यूटेशन को हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। नाउ विद द हेल्प ऑफ द जेनेटिक कोड, कि जेनेटिक कोड जो ट्रिपलेट की फॉर्म में है, तो एक स्टेटमेंट के थ्रू हम एग्जाम्पल लेके आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, और उससे कैसे पूरा फ्रेम चेंज हो जाता है, और फिर उनका जो एक्सप्रेशन है वो भी डिफरेंट आएगा। सो नाउ टेक वन एग्जाम्पल। सपोज हम कहते हैं कि राम हैज़ कैप। सो यहाँ पे हमने ये एग्जाम्पल क्यों लिया? बिकॉज द कोड्स, द जेनेटिक कोड, दे आर इन द ट्रिपलेट फॉर्म। तो ये राम, ये एक कोडोन हो गया, हैज़ 1 कोडोन एंड कैप 1 कोडोन। सो इफ़ वी आर डूइंग द एडिशन, अगर हम कुछ इंसर्ट कर रहे हैं तो उससे कैसे फ्रेम जो है वो शिफ्ट होगा। सपोज़ हमने ये जो सी है, सी से पहले हमने एक वर्ड ऐड किया दैट इज़ आर, तो राम हैज़ रका पी, मीन्स अगर हम यहाँ पे आर ऐड कर रहे हैं तो ये 3 का ट्रिपलेट ये हो जाएगा और पी आगे शिफ्ट हो जाएगा। सेकेंड केस, राम हैज़ आर ई सी। अब हमने क्या किया, जो सी है उसकी जगह पे हमने क्या ऐड कर लिया? ई, मीन्स ये जो सी है आगे ये शिफ्ट हो गया, ये ए इसमें आ गया और ये सी इसी में रह गया। मतलब हमने यहाँ से कुछ रिमूव नहीं किया है, सिर्फ क्या किया है? ऐड किया है।
सो REC, अब ये A इधर शिफ्ट हो गया बिकॉज 2 वर्ड्स आर एडेड नाउ, REC, तो REC इधर रह गया और A जो है अगले फ्रेम में शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट राम हैज़, अब हमने यहाँ क्या ऐड किया, एक D वर्ड और ऐड कर दिया, सो रेड, ये C अगले फ्रेम में शिफ्ट हो गया कैप, और एक ये स्टेटमेंट क्या बन गई, राम हैज़ रेड कैप। तो अब ये पूरा एक कोडोन, बिकॉज इट इज इन द ट्रिपलेट फॉर्म, 1 कोडोन इज एडेड एंड द कोडोन कोड फॉर अमीनो एसिड्स। कोई भी कोडोन जो है वो किसके लिए कोड करता है, अमीनो एसिड के लिए। और एक पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन में अगर एक अमीनो एसिड नया ऐड हो जाए, तो अगर एक नया ही अमीनो एसिड ऐड हो गया उसमें, तो दैट पॉलीपेप्टाइड चेन दैट इज डिफरेंट, वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। एंड इफ दिस डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन डिफरेंट प्रोटीन्स, and if different proteins then different body designs. So I think you understood the mutation and especially the point mutation. तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एडिशन किया है। तो इस एडिशन से या हम डिलीशन भी कर सकते हैं, डिलीशन से पूरा फ्रेम जो है दैट इज शिफ्टेड। तो ये जो शिफ्ट हो गया, पहले यहाँ पर P आया, फिर हमने RE इसमें ऐड किया, तो ये AP पूरा एक फ्रेम शिफ्ट हो गया, एक नया अमीनो एसिड इसके अंदर ऐड हो गया। सो दैट इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल। नाउ वी कैन टेक द अनदर एग्जाम्पल ऑल्सो। अनदर एग्जाम्पल आप किस तरह से ले सकते हो, अब वहाँ पर हमें क्या करना है, उसमें से रिमूव करना है। ओके, तो फर्स्ट हमने लिखा राम। अब अगर हम इसमें से जो ये हैज़ है, इसमें से हम H को रिमूव कर दें, तो यहाँ पे जो क्या रह जाएगा, ASC। अब H को रिमूव किया मैंने, तो ये ASC, इसका ये पूरा एक फ्रेम हो गया, ये फ्रेम हो गया ASC, तो यहाँ पर क्या रह गया, AP। ओके, अब नेक्स्ट मैं क्या करूँ, RAM। अब मैं यहाँ से जो A को भी रिमूव कर रही हूँ, H को तो मैं पहले ही रिमूव कर चुकी थी, तो अब मैं A को रिमूव कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, S यहाँ से SCA, और अब आगे अगले फ्रेम में क्या रह गया, P। अब उसके बाद नेक्स्ट RAM राम, और अब मैंने क्या किया, यहाँ से जो ये S है उसको भी मैंने रिमूव कर दिया, तो ये पूरा ही यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और वहाँ पे जो नेक्स्ट जो पूरा सेंटेंस ही अलग हो गया। सो मीन्स 1 अमीनो एसिड इज रिमूव्ड। और अगर पूरा एक कोडोन ही इसमें से रिमूव हो गया, तो नाउ अमीनो एसिड इज रिमूव्ड, एंड इफ अमीनो एसिड इज रिमूव्ड, जो प्रोटीन है दैट इज ऑल्सो डिफरेंट, and if different protein then different body design. So I think you understood the mutation topic जो है वो हमने चैप्टर 5 में बहुत अच्छे से पढ़ा है। म्यूटेशन होता क्या है, वहाँ पर आपको एक जेनेटिक कोड के बारे में नहीं पता था, बट आप अब और भी अच्छे से म्यूटेशन टॉपिक को समझ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको बताया था कि if there is the change in the genes or if there is the change in the chromosome then mutation occur. So now you can understand how mutation occur if there is the change in the genetic code, because these codon code for the amino acids, and if amino acids are different proteins, and if different proteins then different body design, and these mutations are of different type. The point mutation, point means बहुत ही छोटा, पॉइंट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ही छोटा। तो इफ़ ओनली 1 बेस पेयर इज रिमूव फ्रॉम द जीन देन इट इज़ द पॉइंट म्यूटेशन। इट मे बी लॉस, इट मे बी गेन, एंड इफ इट मे बी द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, कि पूरा जो फ्रेम है सीक्वेंस का
कोडोन्स का वो ही शिफ्ट हो जाएगा, एंड इफ देयर इज दैट शिफ्टिंग देन द अमीनो एसिड्स आर changed. So that is about the mutation in genetic code. I hope you understood. So if you like the video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.